wave optics. Let's start with wave optics. Now listen to me. Wave optics, the first thing is Huygens theory. Basically, we have to prove laws of reflection using Huygens theory. Okay. करते हैं, पर इसमें डायग्राम देखो, इसमें डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं. Let's you should have a reflecting surface like this. Let's say this is our reflecting surface. ये अपना reflecting surface है. Okay, and this is our incident rays. Incident rays are like coming like this. ठीक है, something of this sort. This will be your incident wavefront. ये जो है इसको डबल कर देते हैं. This is your incident wavefront, है ना. Let's name it. इसको बोलते हैं A B. So you can treat these lines like incident rays. Okay, and this is your incident wavefront, है ना. अब ये wavefront आएगा. Now understand, till the time, see what will happen is when your wavefront is coming like this. ये इतना wavefront है अगर AB, so what will happen is first your A point will touch the surface first, right? है ना. और till the time B reaches this point B dash, A is already reflected, isn't it? Okay, B dash तक पहुंचेगा तब तक A already reflect हो गया होगा. ठीक है, तो उसका रिफ्लेक्शन पहले बना देते हैं. देखो, दिस इज नॉट नॉर्मल, ये अपना नॉर्मल है. ठीक है, एक नॉर्मल यहाँ कर लेते हैं. दिस इज नॉर्मल. ओके, सो A is already reflected, तो A will be reflected. लेट्स से आई यूज अ डिफरेंट कलर पेन. लेट्स से मैं इसको ऑरेंज यूज कर लेता हूँ. ओके, तो A जो है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, उतना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो A विल गो लाइक दिस, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, है ना. ये आया लाइन यहाँ पर, पॉइंट A इज रिफ्लेक्टेड लाइक दिस, एंड टिल द टाइम B रीचेस B डैश, व्हाट यू हैव टू डू इज, देखो अपने को क्या करना है, यू हैव टू टेक अ कंपास और मेजर करना है. B डैश मेजर करना है तुमको. ठीक है, और यहाँ जितना टाइम, तो जितने टाइम में B डैश तक पहुंचेगा उतने टाइम में A कहीं और पहुंच गया होगा, राइट. A will reach some other point A dash. Okay, so to get that A dash, measure B dash and make a arc. यहाँ पे एक arc कर लो. टेस्ट पे भी वो arc बनाया हुआ है, तो make a arc like this. Let's say this is the एक approximate measurement ले लेते हैं. This is something of this sort. And then let's say this is your, ये तुम्हारा B dash है, ये तुम्हारा A dash रहेगा. And then they will move together. ऐसे निकल जाएगा. Okay. This is your reflected wavefront. इसको मैं ऑरेंज ही यूज कर लेता हूँ. Can you understand diagram? ठीक है, देखो ये तुम्हारा रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट है. ऐसा अगर ऐसे दिखाना तो ऐसे दिखाते हैं. ये तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. दिस इज योर इंसिडेंट वेवफ्रंट. ये तुम्हारा इंसिडेंट वेवफ्रंट है और रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट ऑरेंज वाला है. तो दिस इज योर रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट. AB इज इंसिडेंट वेवफ्रंट. A dash B dash is your reflected wavefront. समझ में आ रहा है क्या? Any questions here? डायग्राम समझ में आया? और ये आर्क दिखाना पड़ता है. You have to measure B dash and then you have to mark it and you say that this is A dash. So I can say A dash should be equal to B dash, that is equal to velocity in this medium of speed of light into time taken. है ना? Speed is equal to distance upon time, तो distance will be speed into time. Correct? तो A dash का वैल्यू और B dash का वैल्यू सेम होना चाहिए. This is your A dash and this is your B dash. समझ में आया? अच्छा, चलो. If I have to mark angle of incidence, कैसे मार्क करेंगे? Angle of incidence is angle made by the incident ray and the normal. So this is the angle of incidence. Correct? If I have to mark angle of reflection, that will be angle made by the reflected ray and the normal. This is my angle of reflection. Do you agree? Okay. अब देखो ये जो angles है, these are all wave fronts. ये सब 90 है. Okay. We can say that, see यहाँ देखो, I plus this angle, I plus this angle is 90. Okay, है ना, because it's part of the wavefront, isn't it? Wavefront का part है,
है ना, तो आई, ये वाला आई एंगल और ये एंगल, इसको ऐड करेंगे तो 90 मिलेगा. सिमिलरली दिस एंगल व्हाइट वन विथ दिस एंगल हियर, ये पूरा this plus this is 90 and this plus this is also 90. तो common angle cancels off. If this angle is I, this angle has to be I. समझा? मतलब ये अगर 30 है तो ये 60 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा, ऐसे बोल रहे हैं. समझ में आया कि बहुत सर है? आई रिपीट, देखो, look at this. This angle is I, angle of incidence. This plus this is 90 and this plus this again is also 90. Why? Because normal है ना, normal is always 98. तो ये प्लस ये 90 है, ये प्लस ये 90 है, कॉमन एंगल कैंसिल हो जाएगा. तो अगर ये आई है तो ये भी आई हो जाएगा. समझा? ऐसे लुक एट दिस पार्ट. ठीक है, हियर यहाँ पे लुक एट दिस. ये वाला एंगल आर है, आर प्लस दिस एंगल हियर, दिस विल बी 90. समझ में आ रहा है क्या? R plus this is also 90. Why? Part of wave front, isn't it? तो अब देखो, similarly ये ऑरेंज वाला plus this yellow one, this one, ये भी 90 है because normal. तो this plus this is 90 and this plus this is 90. Again you can say common angle cancels off. This is R. थोड़ा समझ में आया क्या? देखो, अगर ये 30 है तो ये 60 होना चाहिए, अगर ये 60 है तो ये 30 होना चाहिए. समझ में आया? देखो ध्यान से, डायग्राम भी समझना और कुछ नहीं. ठीक है, इफ यू हैव गॉट दिस देन प्रूफ इज वेरी इजी. व्हाट यू हैव टू प्रूव इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, दे आर इन द सेम प्लेन. ठीक है, तो वो डायग्राम से ही समझ में आ जा रहा है. ठीक है, दिस इज इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, दे आर इन द सेम प्लेन, राइट? दैट पार्ट इज प्रूफ ऑफ द डायग्राम. एंड देन व्हाट इज द नेक्स्ट वन? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, दैट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, आई इक्वल टू आर. ओके, तो कैसे प्रूव करेगा? देखो, लुक एट द ट्राइंगल्स. आई विल मेक टू ट्राइंगल. देखो, ट्राइंगल ए बी बी डैश, ट्राइंगल ए बी बी डैश, ये देखो ट्राइंगल. ओके, ए बी बी डैश. वो ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में वाइट वन. ओके, दिस एंगल इज आई. सिमिलरली लुक एट अदर ट्राइंगल, ऑरेंज वन, A dash, B dash. Okay, like this, something of this sort. Okay, A dash, B dash, उसमें ये वाला एंगल R है. Now in these two triangles, this is a common side. Okay, this angle is 90, है ना, and we know that कि B dash is equal to A dash, है ना. B dash, that means this side should be equal to A dash, that means this side. So we can say these two triangles are congruent, right? Right hand side test हो गया. तो I equal to R, I is equal to I angle is equal to R angle because corresponding angle of congruent triangle हो गया. Hence proof. समझ में आया क्या? तो ये पूरा स्किल डायग्राम का, ये प्रूफ इज वेरी सिंपल. ओके, व्हाट इज द डायग्राम? सी अंडरस्टैंड कि ये दिस इज आवर इंसिडेंट वेव फ्रंट. ये आएगा, सरफेस को हिट करेगा, दिस पॉइंट हिट्स द सरफेस फर्स्ट, दैट साइड विल बी रिफ्लेक्टेड फर्स्ट, एंड देन जब तक ये वाला पॉइंट यहाँ टच करेगा तब तक दिस पॉइंट इज ऑलरेडी मूव्ड. ओके, देन यू जॉइन देम एंड दे मूव टुगेदर लाइक दिस. समझ में डायग्राम? ठीक है, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे बनाया? दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, एंड रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल. एंड देन इफ दिस इज आर, यू कैन प्रूव दैट दिस इज आर. इफ दिस इज आई, यू कैन ऑब्वियसली प्रूव इट. समझा? अगर ये एंगल अभी इसको निकाल देंगे तो भी चलेगा, तुम्हारे एक्सप्लेनेशन में बताया. दैट इज द डायग्राम. ठीक है, एनी क्वेश्चंस? समझ में? ज्योमेट्रिकल प्रूफ है, कुछ खास नहीं है. ओके, और आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन इज मोर पॉपुलर एक्चुअली, ज़्यादा पूछते हैं. इट इज प्रूव लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. ओके, व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन? using Huygens theory. We have to prove that sin I upon sin R is constant, right? है ना, that is refractive index. और ये भी प्रूव कर रहा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल इन द सेम प्लेन. देखो,
this is your refracting surface. Let's say this medium is N1, this medium is N2. This is, let's say, a rarer medium, okay, and this is denser medium. N2 is more than N1, ऐसा पता बोला है हमको, okay, which also means that if velocity of light is V1 here, let's say velocity of light is V2. We know that light is slower in the denser medium, right? So V2 should be less than V1, correct? लाइट स्लो हो जाएगा ना रेयर मीडियम में, डेंसर मीडियम में आएगा तो, ओके। अच्छा अब देखो यहाँ पर अगेन, तो पहले बना लो, दिस इज योर इंसिडेंट वेव फ्रंट, दिस ए बी, एरो एरो। नाउ अगेन सेम लॉजिक, ए टचेस द सरफेस फर्स्ट, तो बाय द टाइम बी रीचेस बी डैश, ए इज ऑलरेडी रिफ्रैक्टेड, तो रिफ्रैक्शन के लिए ड्रॉ नॉर्मल, ओके, ए इज ऑलरेडी रिफ्रैक्टेड, तो ए को रिफ्रैक्ट कर दो। द रिफ्रैक्शन हैज टू बी हैपनिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल बिकॉज डेंसर मीडियम। इसको देखो ऐसे बना रहे हैं, लाइक दिस, दिस एंगल इज स्मॉलर, ओके, एंड लाइक दिस, ओके। सो यू शुड अंडरस्टैंड बाय द टाइम बी रीचेस बी डैश, व्हाट इज बी बी डैश का वैल्यू? b dash is distance ना, that will be speed which is v1 in this medium into time which is tau, है ना। डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम ना, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? यहाँ का स्पीड इज v1 एंड टाइम को हमने टाउ लिया है। टाउ इज बेसिकली टाइम टेकन फॉर द पॉइंट टू गो फ्रॉम b to b dash। इन द सेम टाइम a will reach some a dash। नाउ यू शुड अंडरस्टैंड, वो सेम टाइम में a dash पहुंचेगा, बट a dash जो डिस्टेंस है वो कम होगा, व्हाई? बिकॉज़ स्पीड इज स्लोअर, ओके। तो आई विल मार्क इट फॉर स्मॉलर डिस्टेंस, दिस इज योर a dash पॉइंट, ओके। तो a dash यहाँ तक पहुंचेगा एंड पोस्ट a dash both the points will move together. This line happens to be your, this is your refracted wavefront, B और A dash refracted wavefront। इसके बाद refracted wavefront चलते रहेंगे। Making sense? समझ में आया क्या? हो गया अभी खत्म। चलो हम एंगल्स मार्क करते हैं। देखो ये एंगल, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगेन सेम लॉजिक, दिस इज आई, आई कैन से दैट, जैसे तुमको वहां बताया था कि ये आई है, तो दिस प्लस दिस इज 90, राइट? दिस प्लस दिस इज 90 एंड अगेन दिस प्लस द वाइट वन इज 90, तो वी कैन ऑब्वियसली से दैट कि ये वाला आई रहेगा। इसको उड़ाया, ये आर है, अगर देखो यहाँ पे देखो ये एंगल ऑलरेडी 90 है, इफ दिस इज आर तो ये आर प्लस दिस एंगल, आर प्लस दिस एंगल हियर, दिस वन, दिस will be 90 and this angle white one with this is also 90, so this plus this is 90 and this plus this is also 90, right? So we can say common angle cancels off, if this is r this angle has to be r। समझा? समझा कि नहीं? काम खत्म। अब सॉल्व कर लो। देखो, now use the triangle and tell me what is sin i का वैल्यू। sin of i will be opposite which is b dash अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे ये एंगल 90 है, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? ये a डैश, a b डैश, सॉरी, ओके। सिमिलरली व्हाट इज साइन ऑफ r? साइन ऑफ r, ये एंगल 90 है, ठीक है, इट विल बी ऑपोजिट व्हिच इज a डैश, दिस इज a डैश, a डैश अपॉन हाइपोटेन्यूज दिस लाइन, तो इट विल बी a b डैश, डिवाइड देम सिंपली, sin i अपॉन sin r विल बी व्हाट? इट विल बी क्या आएगा? b डैश upon a dash and that will be v1 tau upon v2 tau, tau cancel जाएगा, तो v1 upon v2। now you should understand कि v1 v2 क्या है? velocity of light है, velocity of light is constant in a particular medium, तो उसका ratio तो obviously constant रहेगा, this value is constant and that constant value is basically refractive index of 2 with respect to 1, henceforth। and diagram also proves that incident ray, normal and refracted ray are in the same line, in the same plane, sorry। हो गया, समझ में आया क्या? एनी क्वेश्चंस? ठीक है, तो ये डायग्रामेटिक प्रूफ्स है, दे कैन आस्क यू दिस काइंड ऑफ डायग्राम्स। इसमें डायग्राम आ गया तो सब कुछ आ गया, बाकी ज्योमेट्री इज वेरी सिंपल, ओके। तो डायग्राम बनाने को सीखो बस। यहाँ पे रिमेंबर, बाय द टाइम दिस बी रीचेस बी डैश, द सेम टाइम ए रीचेस दिस ए डैश पॉइंट एंड आफ्टर पोस्ट दैट दे आर मूविंग टुगेदर, ओके। ठीक है, अभी एक दो डेरिवेशन हमारे पोलराइजेशन के वो भी देख लो।
polarization. There are two derivations here. One is Malus law and second is Brewster's law. Okay. First of all, what is polarization? Light generally vibrates in n number of planes. Such a light is called as unpolarized light. Unpolarized मतलब light का जो vibrations है वो multiple planes में चल रहा है. Okay. If you pass this through a polarizer, so there is a polarizer and this is your polarizing axis. इसको बोलते हैं हम लोग polarizing axis. So what will polarizer do? It will absorb all the light and it will only allow this electric field which is parallel to this polarizing axis. तो सिर्फ ये वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाउ करेगा, बाकी सबको ब्लॉक कर देगा. ठीक है. उसके वजह से क्या होगा कि लाइट इज वाइब्रेटिंग ओनली इन सिंगल प्लेन. सच अ लाइट इज कॉल्ड एज पोलराइज्ड लाइट. ओके. नाउ इफ लाइट गोज फ्रॉम अनपोलराइज्ड टू पोलराइज्ड तो इंटेंसिटी विल चेंज. समझ में आ रहा है? ओके. तो वो चेंज ऑफ इंटेंसिटी जो है वो हमको निकालना है एंड दैट इज मैलस लॉ. देखते हैं आज मैलस लॉ क्या बोल रहा है. क्या बोला सुनो. इफ यू हैव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस, इसको टेक्स्ट बुक में ऐसे लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड 10 लिखा हुआ है इन मीडियम 1. ओके. और समझ लो हमारा पास एक पोलराइजिंग एंगल एक्सिस है ऐसे, ऐसा कुछ कर देगा. दिस इज अवर पोलराइजिंग एक्सिस. एज्यूम दैट कि ये जो एंगल है ये एंगल कुछ थीटा है. तो यहां से जब लाइट बाहर आएगा, ओके, तो व्हाट विल हैपन कि इमेजिन करो दिस इज द लाइट का वाइब्रेशन, दिस इज द एक्सिस इज लाइक दिस. तो व्हेन लाइट इज गोइंग टू पास थ्रू दिस एक्सिस, ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड अलाउ नहीं करेगा वो. ठीक है. उसका एक कंपोनेंट ही अलाउ करेगा वो. समझा ना. तो यू हैव टू कंपोनेंट, वन इज टुवर्ड्स द एंगल कॉस कंपोनेंट, वन इज अवे फ्रॉम द एंगल साइन कंपोनेंट. राइट. तो कॉस कंपोनेंट जो है वो अलाउ हो जाएगा. तो यू कैन से दैट व्हेन इट कम्स आउट फ्रॉम हियर इट विल बी कॉल्ड एज सम E20 when it comes out the medium 2 में आ रहा है, समझ लो सर. and this E20 should be equal to the cos component of E10. correct. where these are the amplitudes of vibration. समझ में आ रहा है क्या. okay. now you should know that कि देखो यहाँ पे जो इंटेंसिटी है बिफोर पोलराइजेशन, that intensity is I1 and that is proportional to the amplitude square. similarly यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगा I2 that is proportional to the amplitude square here. correct. ठीक है. तो therefore I can write I2 is equal to some K E20 square और यहाँ पे लिख सकते हैं I1 इक्वल K E10 square. now सब्स्टिट्यूट देखो, सब्स्टिट्यूट करो. what is E20 का वैल्यू? it is E10 cos थीटा. तो E10 cos थीटा का स्क्वायर K E10 cos square theta and this is I1. you will get I2 is equal to I1 cos square theta. that is Malus law. but you should know that Malus law is used on already polarized light. ये this light is already polarized, उसके बाद further polarization में यूज कर रहा है. हाँ. if you have a case like this कि unpolarized light है and first time polarize हो रहा है, okay, so what you should do is you should take average value of लेते ना हम इसका cos का एवरेज वैल्यू क्या है cos स्क्वायर का. you have to take average value of cos square theta, but that will be how much? हाफ ना. तो अगर ये इंटेंसिटी I0 है यहाँ पर, तो यहाँ से जो इंटेंसिटी होगा एवरेज वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा इज हाफ. राइट. तो यू हैव I0 by 2. फर्स्ट टाइम पोलराइजेशन, अनपोलराइज्ड टू पोलराइज्ड लाइट, इंटेंसिटी बिकम्स हाफ. सब्सीक्वेंट पोलराइजेशन, उसके बाद पोलराइज करना है तो यू हैव टू सी द एंगल बिटवीन द वाइब्रेशन एक्सिस एंड पोलराइजेशन एक्सिस. वो एंगल का cos स्क्वायर थीटा हैज टू बी देयर. समझ में आ रहा है क्या. ओके. फर्स्ट टाइम पोलराइजेशन क्वेश्चन ऐसे दे दिया, देखो ये एक अनपोलराइज्ड लाइट है, इंटेंसिटी I0 है, उसको एक बार पोलराइज किया यहाँ पे. ओके. एंड देन देयर इज वन मोर एक्सिस P1 एंड P2, दो पोलराइजर है, इनके बीच का एंगल दिया है 45 डिग्रीज. बोला कि बाहर आएगा तो बताओ क्या इंटेंसिटी है. तो यू शुड नो दैट फर्स्ट टाइम पोलराइजेशन हाउ मच I0 by 2. फर्दर पोलराइजेशन के लिए क्या करना है, ये दोनों बीच का एंगल देखना है. राइट. विच इज 45. तो इट इज प्रीवियस इंटेंसिटी. व्हाट इज I2? इट इज I1 cos square theta. ओके. तो intensity here post polarization again will be previous intensity into cos square 45, which will be how much? I0 by 4. समझ में आया क्या. ये ध्यान रखना है, पहली बार पोलराइज हो रहा है तो ऐसे,
ठीक है। बट अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा, सुनो, अगर मैंने क्वेश्चन ऐसे दिया कि लाइट इज ऑलरेडी पोलराइज्ड एंड देन देयर इज अ P1 हियर एंड देन देयर इज अ P2 हियर, लेट्स से ऐसे कुछ, ओके। यहाँ पे जो एंगल है दिस इज 45 एंड यहाँ पे जो एंगल है दिस इज ऑल्सो 45 P2। नाउ इफ दे आस्क मी कि व्हाट इज द इंटेंसिटी, अब पूछा यहाँ पे समझ लो इंटेंसिटी I0 है, तो कैसे करेंगे, पोलराइज लाइट राइट, बट पोलराइजेशन एक्सिस इज दिस, ओके, एंड वाइब्रेशन एक्सिस दिस, दोनों के बीच में कुछ एंगल है क्या, है, तो माइनस यूज करना पड़ेगा। ऑलरेडी पोलराइज्ड लाइट है तो माइनस इज एप्लीकेबल, इज मेकिंग सेंस, ठीक है। तो देन यहाँ पे जब आएगा बाहर, व्हाट इज द इंटेंसिटी, प्रीवियस इंटेंसिटी इनटू cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर 45 इज हाफ, ठीक है, तो यू गेट I/2। तो यहाँ से यहाँ आएगा तो अगेन देयर इज अ एंगल राइट, तो यूज द माइनस लॉ अगेन, तो प्रीवियस इंटेंसिटी इनटू cos स्क्वायर थीटा व्हिच इज हाफ, तो आंसर आया I0/4। तो देखना पड़ता है, इज मेकिंग सेंस कि लाइट ऑलरेडी पोलराइज्ड है तो हाफ कर दो, अगर सॉरी ऑलरेडी तो माइनस लॉ यूज करो, और अगर पोलराइज नहीं है ठीक है तो हाफ कर दो। समझ में आ गया, ऑलरेडी पोलराइज्ड, इफ अनपोलराइज्ड है तो इंटेंसिटी विल बी हाफ, अगर ऑलरेडी पोलराइज्ड है तो देखना पड़ेगा एंगल है कि नहीं। अगर यहाँ पे इफ आई से इट इज पैरेलल, सेम क्वेश्चन को अगर ऐसे दिया होता कि दिस इज द लाइट और ये P1 इज पैरेलल टू इट, देन देयर इज नथिंग, सब यहाँ से यहाँ में कुछ चेंज नहीं होगा, समझ में आ रहेगा, बिकॉज cos 0 इज 1, तो यहाँ पे अगर से I0 है तो यहाँ भी I0 हो जाएगा, इज मेकिंग सेंस। तो ऑलरेडी पोलराइज है तो एंगल दिखना पड़ता है। चमका, ये क्वेश्चन आने का काफी चांस है इसलिए बता दिया, ठीक है। दिस इज योर मैलेस लॉ। तो मैलेस लॉ बेसिकली टेल्स अस दैट कि देयर आर सर्टेन मटेरियल्स व्हिच आर कॉल्ड एज पोलराइजर, उसके थ्रू पास किया तो लाइट पोलराइज हो सकता है। दिस इज मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 क्या है, ब्रूस्टर्स लॉ, बेसिकली बाय रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन लाइट कैन बी पोलराइज इन वन मोर वे, ओके, बट उसके लिए थोड़ा स्पेशल एंगल पे लाइट को इंसिडेंट करना पड़ता है। इफ यू हैव मटेरियल हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज n, ओके, लेट्स कॉल इसको n2 और दिस इज कॉल्ड एज n1, तो n2 इज रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स, लेट्स से दिस इज अ ग्लास और समथिंग, इमेजिन करो ये ग्लास है, इमेजिन करो ये एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 लिखा है, ग्लास का n2 लिखा है, ओके। तो व्हाट ब्रूस्टर हैज टोल्ड अस कि इफ यू इंसिडेंट लाइट एट अ वेरी पर्टिकुलर एंगल, एट अ वेरी स्पेशल एंगल, दैट एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ पोलराइजेशन, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ पोलराइजेशन। तो अगर यहाँ पे अनपोलराइज लाइट है उसको हम लोग अगर IP एंगल ऑफ पोलराइजेशन पे इंसिडेंट करेंगे तो व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट निकलेगा, द रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड एंड द रिफ्रैक्टेड लाइट इज पार्शियली पोलराइज्ड। कंप्लीटली पोलराइज्ड मतलब इट विल वाइब्रेट ओनली इन वन प्लेन, ओके, और वो वाइब्रेशन इज इनसाइड द पेज, तो दे विल शो इट लाइक अ डॉट, से डॉट दिखाएंगे, डॉट दिखा रहा है मतलब वाइब्रेशन पेज के अंदर जा रहा है, दैट यू शुड नो, कभी कभी इस पे क्वेश्चन भी आता है। तो ये जो लाइट आया अनपोलराइज लाइट, तो रिफ्लेक्टेड लाइट है दैट विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड, ओके, एंड तो आई जस्ट राइट यहाँ पे प्लेन पोलराइज्ड या कंप्लीटली पोलराइज्ड, एंड वाइब्रेशन इज इनसाइड द पेज, ओके, पॉइंट नंबर 1। ये जो एंगल है इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज IP, तो दिस विल बी IP बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड वन मोर थिंग, सी, एक चीज तो ये हो रहा है कि तुम्हारा लाइट जो है पोलराइज हो रहा है। सेकंड थिंग व्हिच हैपेंस हियर इज कि एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे इज 90, ये एंगल 90 रहता है। Two things to remember: at angle of polarization, the reflected light is completely polarized. Also, the angle between reflected ray and refracted ray is 90. ये दो चीज याद रखो, समझा? ठीक है, इसको ब्रूस्टर्स एंगल बोलते हैं या एंगल ऑफ पोलराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन, सी, तो वो क्या बोलते थे, IP plus 90 plus R is 180, which means IP plus R will be 90, okay. Now you can write Snell's law. What is Snell's law? N1 sin IP, है ना, refractive index into sin of angle in that medium is equal to N2 refractive index into sin of angle, sin of R in that medium. This is Snell's law, right? So N1 sin IP is equal to N2, R के प्लेस में क्या लिख सकते हैं,
R is actually 90 minus IP. तो साइन ऑफ 90 माइनस व्हाट इज साइन ऑफ 90 माइनस थीटा? cos थीटा. तो n1 साइन IP इज इक्वल टू n2 cos IP. इसको वहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले आओ, cos को, you will have tan of IP is n2 by n1. or you can say कि angle of polarization is tan inverse of n2 by n1. This is refractive index of denser medium upon rarer medium, है ना? denser upon rare है, ठीक है? समझ में आया क्या? Now they will always combine questions of Brewster's law to critical angle. Do you know critical angle का फॉर्मूला क्या है? कभी कभी they will give you critical angle of the medium and they will ask you what is the polarizing angle. So you must know that critical angle is symbol is C. Sin C is equal to 1 upon refractive index of denser to rarer. याद रखो, ठीक है? Okay, so it will be refractive index of rarer medium upon denser medium. मतलब छोटा वैल्यू ऊपर आएगा, बड़ा वैल्यू नीचे आएगा. समझ में आएगा? If they give you two refractive index, small value will be on the numerator, bigger value will be the denominator. समझा? तो sin C क्या है? Critical angle. If they give you critical angle, you have to find this value. According to this diagram, I can say that it is actually rarer is n1 and denser is n2. According to my diagram. मेरे डायग्राम में डेंसर क्या है? n2 है ना, और रेयर क्या है? n1 है. तो ऐसे लिखेंगे. तो क्रिटिकल एंगल दिया है मुझे, तो मैं ये रेशियो निकाल लूंगा. ये रेशियो मिल गया तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एंगल ऑफ पोलराइजेशन मिल जाएगा. समझ आया क्या? ओके. इफ यू नो क्रिटिकल एंगल यू कैन ऑलवेज गेट पोलराइजेशन, और वाइस वर्सा. मोस्टली दे गिव क्रिटिकल एंगल एंड दे आस्क यू पोलराइजिंग एंगल, एंड दिस इज कॉल्ड एज ब्रूस्टर्स लॉ. ब्रूस्टर्स एंगल, और यू कैन से एंगल ऑफ पोलराइजेशन. एनी क्वेश्चंस? ठीक है. अगर एयर दिया है तो n1 will become 1, isn't it? Okay, ग्लास दिया है तो you can take n2 as 1.5. वाटर दिया है तो it will be 4/3. Is it making sense? ठीक है. आगे बढ़ते हैं. What else? इसके बाद we start with proper interference. Interference basically YDSC, Young's double slit experiment. इसमें they will ask you कि find the path difference का value, and they will also ask you to get the fringe width, or they can ask you find conditions, give condition of maxima and minima, constitutive destructive interference, things like that. So you must know that कि if you have two sources S1 S2, दो slits है समझ लो हमारे पास, तो they will always interfere, and if you have a screen at a distance d from them, they will form interference pattern on the screen, isn't it? Okay, distance between source को we call as small d. Okay, distance between source and screen is called as capital D. समझ में आया क्या? सेंटर पे क्या बनता है हमेशा? हमेशा ब्राइट फ्रिंज बनता है, राइट? इसको हम बोलते हैं CBF, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज. यहाँ पे बनेगा CBF, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज. एंड देन इफ यू सी द पैटर्न, ऐसा कुछ है. सेंटर पे यू हैव ब्राइट फ्रिंज, देन यू हैव ऑल्टरनेट bright and dark bands like this, correct? Okay, if you want to know about any fringe, okay, from the center, तो उसके लिए भी put a symbol, उसको लिखते हैं y. What is y here? Distance of any fringe from the center. So let's call this point as P. Center के point को let's call as O. Okay, ठीक है. एक और टर्म पता होना चाहिए. तो see, distance between sources small d, distance between source and screen capital D, distance of any fringe from the center small y. Okay, this is called as fringe distance. There is one more term, fringe distance निकाल सकते हो या fringe angle निकाल सकते हो. Okay, theta is called as fringe angle. At what elevation particular fringe lies, and relation between theta and y is what? You can draw a triangle and draw it, write it. लिख सकते हैं tan theta is equal to y by d. Generally angles बहुत छोटे होते हैं. You can also write theta is approximately equal to y by d, because in light wavelength is very very small. तो ये लिख सकते हैं, ठीक है. अच्छा, तो फर्स्ट क्वेश्चन दे विल आस्क यू इज फाइंड पाथ डिफरेंस. नाउ पाथ डिफरेंस का जो सिंबल है HSC में, इट इज नॉट डेल्टा x, वो डेल्टा L यूज करते हैं सर.
समझ में आया क्या? डेल्टा एल यूज करते हैं सिंबल को, ठीक है। तो ये पूछते हैं पाथ डिफरेंस, इफ आई हैव टू शो इन द डायग्राम इट इज दिस, S1P is the path traveled by source 1, S2P is the path traveled by source 2. तो डेल्टा एल का डेफिनेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, विल बी S2P minus S1P. डेल्टा एल इज पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस मतलब डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द लाइट टू रीच एट दैट पॉइंट, वो दो डिस्टेंस है उसको सब्ट्रैक्ट करना है, समझा? वन मोर फॉर्मूला यू शुड नो हियर is this is formula number 1. Formula number 2 that you should know, there is a relation between phase difference and path difference, and that relation is this: phase difference is 2 pi by lambda path difference. This will be used in finding the conditions. Any questions till now? Okay, third formula that you should know before I go for the derivation is this: कि intensity of any point, whether it is bright or dark, okay, intensity of any point is given by the formula which we did in superposition. It is IR is equal to 4I cos square delta phi by 2. ये फॉर्मूला बताना चाहिए. What is I here? It is individual source का intensity. तो S1 S2 का intensity अगर I है तो you can say resultant intensity is always 4I cos square phi by 2, which means I max will be at, I max का value will be 4I and it will happen at cos delta phi by 2. जब क्या होगा, cos delta phi by 2 जब प्लस या माइनस 1 होगा, विच मीन्स डेल्टा फाई विल बी 2n पाई, ओके, है ना? एंड इफ यू नो डेल्टा फाई का वैल्यू कैन ऑल्सो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ना, यहाँ पे डाल सकते हैं यहाँ पर, ओके। तो व्हाट विल गेट डेल्टा एल का वैल्यू एज, विल गेट डेल्टा एल का वैल्यू एज n लैम्डा, ओके। दिस इज कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव और वी कैन से ब्राइट फ्रिंज. सिमिलरली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब मिलेगा, जब इंटेंसिटी will be minimum, which is zero intensity, right, which will happen when cos delta phi by 2 is 0. Cos delta phi by 2 is 0, and that will happen when delta phi का value is what, it is odd multiple of pi. और I can say ये जो delta phi का value है इसमें सब्स्टिट्यूट करो, delta L मिल जाएगा, और I can say phase difference or path difference is 2m minus 1 lambda by 2. Okay, so phase difference even multiple of pi, constructive interference or bright fringe will be formed. Path difference is n lambda, then also you'll get bright fringe. ये conditions पता होना चाहिए अपने को, ठीक है? These are conditions. This is intensity का formula, and based on the formula we have conditions for constructive or destructive interference, or we can say bright or dark fringes. ठीक? These values you should know. Minimum intensity is 4I here. Maximum intensity is 4I here, and minimum intensity is 0. These formulas are extremely important. Okay, now based on this information and this diagram, we'll try to get two things. We'll get path difference का value first, okay, and then we'll get दो तीन चीज निकालना है इसमें. एक तो y का फॉर्मूला निकालना है, डिस्टेंस ऑफ एनी ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर वो निकालना है, एंड ऑल्सो वी हैव टू गेट द फ्रिंज विड्थ, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस. ये सब चीज हम निकालेंगे. ओके, शुरू करते हैं. आज हम look at the diagram, just extend this line, और ये लाइन को भी यहाँ पे एक्सटेंड करो. आई एम कॉलिंग दिस पॉइंट एज पॉइंट M, दिस एज पॉइंट N. दो ट्राइंगल बनाएंगे, एक ट्राइंगल है S1PM, सेकेंड ट्राइंगल इज S2PN. ओके, सो यू हैव टू ट्राइंगल्स S1PM, second triangle is S2PN. Now this distance is capital D, is also capital D. ये जो distance है PM, PM क्या मतलब, if this is D, this will be D by 2, which means MO will be D by 2, right? अब मुझे MP का वैल्यू चाहिए, तो it will be simply Y minus D by 2. This is Y minus D by 2. Similarly, your NO will be also be D by 2. So if you want NP, so it is simply Y plus this D by 2. Any questions? तो the goal is to find ये वैल्यू, हमको ये वैल्यू चाहिए S2P. तो ट्राइंगल से मिल जाएगा. देखो what is the value of S1P here? S1P square is equal to D square plus Y minus D by 2 the whole square. Okay, and यहाँ पे I can write S2P square is equal to
d square plus y plus d by 2 the whole square. Subtract these two relation, what do you get? S2p minus square minus S1p square will be d square plus y by y plus d by 2 square minus d square plus y minus d by 2 square, which will be equal to what? क्या मिलेगा? d square plus y square plus d square by 4 plus 2y d by 2 minus d square minus y square minus d square by 4 minus plus 2y d by 2. This will get cancelled and you will get how much? 2yd. And you use a plus b का फॉर्मूला यहाँ पे a plus b a minus b. Correct? Basically you get S2p minus S1p. Delta L का वैल्यू as 2yd upon S2p plus S1p, ये मिल रहा है वैल्यू. अब इसमें ये लोग क्या कंडीशन डालते हैं कि सी जनरली द सोर्सेस S1 S2 दे आर वेरी नियर टू ईच अदर, बहुत पास में होते हैं. स्मॉल d इज वेरी स्मॉल, ओके, एंड स्क्रीन is generally very far, so capital D is very big. So the condition we are putting here is कि small d is much lesser than capital D. Now what will happen in such case? इसकी ये जो दो लाइन्स है जो तुमको दिख रहा है S1p S2p, they will almost become parallel if the distance is very large. So they will be almost equal to small d, capital D. Almost, okay. So you can say approximately S1p is approximately equal to S2p is approximately equal to D only for the case where small d is much less than capital D. ये केस है अगर तो ये ट्रू हो जाएगा, तो सब्स्टिट्यूट करते. There will be some difference, but that difference can be ignored in the denominator. Okay, तो 2yd upon 2d, cancel this out, तो डेल्टा L का वैल्यू मिल गया yd by d. तो ये डेरिवेशन पूछ सकते हैं. ओके, एक बार ये मिल गया तो यू नो द नाउ कि इफ यू हैव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और ब्राइट फ्रिंज versus destructive interference or dark fringe. So we know that delta L का value here was n lambda and delta L का value here was 2m minus 1 lambda by 2. Delta L का value क्या मिला अभी? y small d by capital D which is n lambda, and here it is y small d by capital D is equal to 2m minus 1 lambda by 2. ये formulae are very important because they are used extensively in numericals. n lambda capital D by D, डिस्टेंस ऑफ एनी nth ब्राइट फ्रिंज. जैसे सेकंड ब्राइट फ्रिंज है तो n का वैल्यू 2 डाल दो, ठीक है, तो n इज द ऑर्डर. ओके, एनी फ्रिंज का, एनी ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस इफ यू वांट यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, एंड इफ यू वांट एनी डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस इट विल बी दिस डिस्टेंस ऑफ एनी डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर बाय 2d. ओके, समटाइम्स दे माइट आल्सो आस्क यू एंगुलर डिस्टेंस. यहां देखो, तो what we have got right now is the linear distance of any point. If you want angular distance, what you can do is, देखो यहाँ पे you can use this formula. तो theta is y by d, वो वाला फॉर्मूला यूज कर लो. theta is the angular distance, तो y by d, तो d को नीचे ले लिया तो theta मिल जाएगा. तो theta will be equal to n lambda upon d. This is angle या fringe angle for any bright fringe, and theta is equal to, again take the d here, you get 2m minus 1 lambda by 2. Okay, and if they ask you fringe width कैसे मिलेगा? See, fringe width मतलब क्या होता है? जैसे if this is a central bright fringe, you have multiple bright and dark fringes on both the directions. So let's say if this is your CBF, and if I want distance in these two fringes, so what I'll do is I'll get yn, I'll get yn plus 1 and I subtract. ठीक है, and the distance of any nth bright fringe or n plus 1 का subtraction will give you the fringe width. Symbol is beta. So I can say beta is simply yn plus 1 minus yn, or we can say n plus 1 lambda d by d minus n lambda d by d. Subtract करो, क्या मिलेगा? बीटा का वैल्यू lambda d by d. This is the fringe width. Fringe width.
ओके, एंड इफ यू वांट एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या करोगे, जस्ट डिवाइड द डिस्टेंस बाय d. ओके, तो थीटा बीटा विल बी इक्वल टू लैम्डा बाय d. दिस इज एंगुलर फ्रिंज विड्थ. दिस कैन आल्सो बी आस्क्ड. ठीक है, HSC में ये भी पूछ सकते हैं अभी, बिकॉज दे हैव मेंशन द फॉर्मूला. एनी क्वेश्चंस हियर? ओके, तो ऑल ऑफ दिस फॉर्मूलाज आर एक्सट्रीमली. और डेरिवेशन में सिर्फ यही पार्ट जो है वो डेरिवेशन का पार्ट है, फाइंडिंग द पार्ट डिफरेंस. बाकी ये सारे फॉर्मूलाज हमको आने चाहिए. इट्स पार्ट ऑफ द बेसिक इंटरफेरेंस कॉन्सेप्ट. दिस सेटअप इज कॉल्ड एज YDSC सेटअप, वेयर यू हैव 2 स्लिट्स. ठीक है, एनी क्वेश्चंस हियर? एक बार देख लो सब कुछ पूछना है तो पूछ लो, एंड देन विल डू टू डायग्राम्स. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, देखो अभी 1-2 डायग्राम्स तक काफी पूछने लग गए वो लोग. एक है लॉयड्स मिरर, ये पूछा था अभी रिसेंटली. ओके, एंड देन यू शुड आल्सो नो बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट डायग्राम या बाइप्रिज्म इंटरफेरेंस. बाइप्रिज्म इंटरफेरेंस, बाइप्रिज्म का थोड़ा न्यूमेरिकल एस्पेक्ट भी देखेंगे, बिकॉज देयर इज अ सॉल्व्ड सम इन द HSC टेक्स्ट बुक. ओके, सी इन लॉयड्स मिरर व्हाट इज हैपनिंग. एक मिरर रखते हैं हम लोग यहाँ पर. लेट देयर इज अ मिरर ऑफ फिक्स्ड लेंथ. लेट्स से दैट लेंथ इज सम b, स्मॉल b. Okay, and there is a source of light S. Source of light is at a distance a from the mirror, end of the mirror, and at height e, let's say height e पे रखा हुआ है. and let's say एक स्क्रीन है थोड़ा दूर. okay, मिरर से it is थोड़ा far, c distance पे भी है one screen. okay, now what will happen on the screen is this screen will receive 2 types of light. ओके, 2 टाइप का लाइट मिलेगा. एक तो देखो, अंडरस्टैंड, दिस इज सोर्स ऑफ लाइट, तो एवरीवेयर यू आर गोइंग टू गेट डायरेक्ट लाइट. तो स्क्रीन है तो डायरेक्ट लाइट तो मिल ही रहा है, बट बिकॉज ऑफ द मिरर व्हाट विल हैपन, फ्यू ऑफ द लाइट्स दे विल गेट, सी लुक एट दिस लाइट फॉर एग्जांपल, इट विल गेट रिफ्लेक्टेड, राइट. तो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पहुंचेगा. ऐसे और भी लाइट्स है जो ऐसे रिफ्लेक्ट होकर पहुंचेंगे यहाँ पर. समझ में आ रहा है क्या? तो स्क्रीन पे रिफ्लेक्टेड लाइट है और डायरेक्ट लाइट है. दीज 2 लाइट्स विल इंटरफियर हियर. समझ में आया क्या? एंड देयर इज अ इंटरफेरेंस पैटर्न बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट लाइट एंड रिफ्लेक्टेड लाइट. दैट यू शुड अंडरस्टैंड. लॉयड्स का कॉन्सेप्ट क्या है कि इट शोज इंटरफेरेंस ऑफ डायरेक्ट लाइट एंड रिफ्लेक्टेड लाइट. तो डायग्राम में हमको वो बनाना पड़ता है. देखो, और रिफ्लेक्टेड लाइट का प्रॉपर्टी क्या है कि इट इज अवेलेबल ड्यू टू मिरर, राइट. तो मिरर का दिस इज द फर्स्ट लाइन विच इज रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर. ओके, एंड दिस विल बी द लास्ट लाइन which is reflected by the mirror. समझ में आ रहा है क्या? ऐसे और भी लाइन्स है, मैंने फर्स्ट और लास्ट ही बनाया. ओके, और दिस आर द, तो रिफ्लेक्टेड लाइट इज अवेलेबल ओनली इन दिस रीजन. यहाँ पे इतने ही रीजन में रिफ्लेक्टेड लाइट अवेलेबल है. ओके, डायरेक्ट लाइट इज अवेलेबल एवरीवेयर. ओके, तो बट डायरेक्ट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट जहाँ पे प्रेजेंट है वही इंटरफेरेंस रीजन होगा. तो आई कैन से दैट कि हियर एट दिस, इन दिस रीजन वी हैव रिफ्लेक्टेड लाइट एज वेल एज डायरेक्ट लाइट लाइक दिस. ये है डायरेक्ट लाइट. सिर्फ ये 2 ही बना है बिकॉज और भी लाइट है, बट दीज आर द एक्सट्रीम लाइट्स विच विल बी यूजफुल. दिस वाइट में जो दिखा है वो है डायरेक्ट लाइट ऑन द स्क्रीन, एंड जो ऑरेंज में लिखा है वो है रिफ्लेक्टेड लाइट. एंड बिकॉज ऑफ द इंटरफेरेंस बिटवीन दीज 2 you will get the interference. This is called as interference region. इंटरफेरेंस रीजन. ओके, तो HSC में जस्ट डायग्राम ही है, तो यू शुड नो हाउ टू डू डायग्राम. समझ में आया क्या? नाउ सी, जस्ट फॉर आवर इजी कैलकुलेशन के इजी करने के लिए वो क्या एज्यूम करते हैं कि इंस्टेड ऑफ सेइंग कि रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो इधर से ही आ रहा है, दे बैक ट्रेस दिस रेज. ओके, इसको बैक ट्रेस कर लेते हैं. फिर बैक ट्रेस, ये वाला रे को बैक ट्रेस करा. ओके, एंड इफ आई बैक ट्रेस दिस रे आल्सो, तो आई विल गेट a point here which is actually reflection of the source itself. इसको S dash बोलेंगे. तो हम ऐसा बोलते हैं कि S is the real source and उसका जो reflection है that is the virtual source.
ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग इट इज रिफ्लेक्टेड लाइट वी कैन से दैट लाइट इज कमिंग फ्रॉम द वर्चुअल सोर्स. इज मेकिंग सेंस? तो वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज इंटरफेरेंस बिटवीन अ रियल सोर्स एंड अ वर्चुअल सोर्स. इज मेकिंग सेंस? वो इमेज को हम वर्चुअल सोर्स बोल रहे हैं, एक्चुअल लाइट तो यही से आया, बट इसको हम बैटर्स करके बोल रहे हैं कि इमेज से लाइट आ रही है. समझ में आया क्या? एनी क्वेश्चंस? ओके, ठीक है. ये हो गया तुम्हारा लॉयड्स मिरर का डायग्राम. लेट्स गो फॉर द बाइप्रिज्म. बाइप्रिज्म में देखो क्या होता है. पहले व्हाट यू शुड नो, व्हाट इज बाइप्रिज्म. बाइप्रिज्म इज अ एक्सट्रीमली थिन प्रिज्म. ओके, मतलब उसका जो दीज एंगल्स आर एक्सट्रीमली थिन. दो थिन, दिस एंगल आर ऑलमोस्ट हाफ अ डिग्री एंड दिस एंगल इज ऑलमोस्ट 179. तो ये दो एंगल जो है ये हाफ डिग्रीज है. दिस इज ऑलमोस्ट 179. इट्स कंप्लीटली ऑपोजिट. तो दो थिन प्रिज्म को, वी हैव टू थिन प्रिज्म्स, हाफ डिग्री के दो थिन प्रिज्म को वी स्टिक टुगेदर एंड दिस इज व्हाट यू गेट. ओके, एंड देन वी कीप अ सोर्स हियर, दिस सोर्स ऑफ लाइट. तो क्या होगा, सोर्स ऑफ लाइट में क्या होगा, लाइट विल बी गोइंग लाइक दिस. यहाँ से लाइट ऐसे इसको हिट करेगा, then it's so multiple lights are going like this. Okay, and it will get reflected like this. देखो, and उल्टा करके देख दो, एक ही पॉइंट पाएंगे एक्चुअली. वी अज्यूम दैट कि दिस विल फॉर्म अ वर्चुअल सोर्स लाइक दिस, ऐसा कुछ. देखो भी कैसे हो रहा है. दिस इज लाइट. तो एक प्रिज्म ने क्या किया, वन ऑफ द प्रिज्म हैज फाउंड वन वर्चुअल सोर्स एस डैश. ओके, ऐसे ये वाला प्रिज्म भी ऐसे करेगा. देखो, इफ यू हैव वन मोर प्रिज्म तो इट विल गो लाइक दिस. ये रे आके यहाँ पे आएगा, एक बार रे लेते हैं एंड दे विल फॉर्म वर्चुअल सोर्स लाइक दिस. कुछ ऐसा टाइप का, something of this sort. There is the dash, and if you extend the lines, ये लाइन देखो ऐसा जाएगा. इसको फॉलो करना है, something of this sort. Okay. And see, you will understand. Look at this part. ये जो पार्ट है यहाँ पे, तो ये जो पार्ट है, look at this, यहाँ पे दो रेस मिल रहे हैं. तो ये ब्लू वाले रेस एंड ऑरेंज रेस बोथ आर टुगेदर, राइट? इफ आई हैव अ स्क्रीन हियर, लेट्स से मैंने यहाँ पे एक स्क्रीन लगा दिया, बोले यहाँ पे अगर एक स्क्रीन है मेरे पास. ओके, तो व्हाट विल हैपन इज ऑन दिस स्क्रीन, ऑन दिस स्क्रीन ये रीजन में देखो, यहां तक मुझे ऑरेंज लाइट मिल रहा है, ठीक है? ओके, एंड यहां तक मुझे ब्लू लाइट मिल रहा है. समझ में आ रहा है क्या? तो ये जो जहां पे ऑरेंज और ब्लू दोनों अवेलेबल है, सी बियॉन्ड दिस लाइन देयर इज नो ऑरेंज लाइट एंड बियॉन्ड दिस लाइन देयर इज नो ब्लू लाइट. ओके, तो जहां पे S1 S डैश और S2 S डबल डैश दोनों वर्चुअल उसका लाइट मिल रहा है मुझे, दैट बिकम्स माय इंटरफेरेंस रीजन. तो वी से यहाँ पे इंटरफेरेंस ड्यू टू दीज टू वर्चुअल सोर्सेस विल हैपन. समझ में आएगा? समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. तो ये डायग्राम भी बताना चाहिए, इंटरफेरेंस रीजन. तो समझ में आएगा डायग्राम? थोड़ा सा अजीब है बट कांट हेल्प इट.
ओके एक मिनट पहले एक छोटा सा स्पीकर बनाते हैं. ओके ये समझ में आया डायग्राम थोड़ा सा. ओके तो सी इसमें कपल ऑफ क्वेश्चंस बनाते हैं. इफ यू हैव अ सिंगल प्रिज्म लाइक दिस, दिस इज द प्रिज्म एंगल, और अगर एक सोर्स ऑफ लाइट है, राइट, यहाँ कर लेते हैं, सोर्स ऑफ लाइट है. ओके तो वी से कि लाइट विल गो लाइक दिस एंड गोज लाइक दिस, तो इट फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज लाइक दिस. ये अगर एस सोर्स है तुम्हारा तो ये एस डैश बनेगा, जैसे यहाँ पे बना है देखो, लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट होके इट फॉर्म्स अ वर्चुअल सोर्स. तो इफ दिस डिस्टेंस इज ए एंड दिस डिस्टेंस इज ई, तो वी कॉल दिस एंगल एज एंगल ऑफ डिविएशन. करेक्ट? Light was going like this, but it deviated. So this is the angle of deviation, or there is a relation between angle of deviation and angle of prism, which is this. Delta is equal to A into mu minus 1. This is from thin prism formula. Ray optics का formula ये. Okay. अभी देखो ये delta पता है अगर हमको, we can use tan delta, and we can say that tan delta is basically opposite upon adjacent, so you will get E का value as A tan delta, and that is equal to since delta is very small angle, we can say it is A delta only, and that will give me what? E का value A into mu minus 1. समझा? ओके अब ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज किया उन्होंने क्या बोला, इफ यू हैव टू प्रिज्म्स लाइक दिस, अ बाइप्रिज्म सेटअप, यहाँ पे सोर्स है, ये डिस्टेंस अगर A है, एंड दीज आर टू वर्चुअल सोर्सेस S dash and S double dash. This is from the solved example. So they have called this as E. This as E. इनका इंटरफेरेंस यहाँ स्क्रीन पे हो रहा है, राइट? ये डिस्टेंस को B ले लिया. So we can say that D effective will be equal to what? D effective the distance is source and screen. Sources यहाँ पे, screen वहाँ पे, so it will be A plus B. समझा? And small d effective will be how much? E plus E, right? So it will be 2E. और 2E का क्या मिला हमको? इट इज स्मॉल a कैपिटल A म्यू माइनस 1. समझ में आया क्या? स्मॉल डी इफेक्टिव मिल गया तुमको. नाउ इज आस्क मी कि डिस्टेंस ऑफ एनी ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर yn पूछा, यू कैन राइट n लैम्डा d by d. आई थिंक टेस्ट ट्यूब में कुछ 20th फ्रिंज का डिस्टेंस पूछा है. लैम्डा इज गिवन, d एंड d इफेक्ट यू कैन कैलकुलेट. समझ में आया क्या? ऑल्सो इज आस्क यू ym डिस्टेंस ऑफ एनी डार्क फ्रिंज, तो वो भी निकाल सकते हैं. ओके और फ्रिंज विड्थ भी पूछ सकते हैं, लैम्डा d by d. समझ में आया क्या? देखो वन लास्ट वन, diffraction of light. See what is diffraction of light? If you have a very small slit, okay, इसको बोलते हैं हम slit width. Okay, and light is passing through this slit. Let's say slit width is A. So what we have observed on the screen, light kind of spreads, it bends towards the edges. ऐसा हो जाता है. Okay, and what really happens at the slit is if you zoom the slit, all these points on the slit, they will behave like secondary source of light. Okay, and they interfere among themselves. यहाँ पे interference होता है. Okay, तो we can say basically what is diffraction? ऐसे बहुत सारा interference होगा यहाँ पे. All the secondary sources they interfere here, and what you see on the screen is basically interference of the secondary sources. समझा? तो interference मतलब क्या है? When you have only two sources of light, okay, superposition, है ना? और diffraction क्या है? When you have multiple sources of light superpositioning. समझा ना? तब n number of sources एक साथ सुपर इम्पोज हो रहे हैं तो that is diffraction. दो ही है अगर तो वो इंटरफेरेंस है. समझ में आया क्या? और यहाँ पे तो क्या हो रहा है कि जो सोर्सेस इंटरफेयर कर रहे हैं those are secondary sources of light. Okay, तो again you see on the screen is something of interference pattern जैसा कुछ दिखता है वहाँ पे, but थोड़ा difference है, it's not exactly interference pattern. You will see the central fringe is very bright and broad, and उसके बाद you get a very small fringes like this. Fringe width है जो है वो अचानक से कम हो जाता है. मतलब if you look at the intensity profile, it looks like ऐसा दिखता है. वो ऐसा बनाया तो ऐसा कुछ लिखा. तो द ब्राइट सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज द ब्राइटेस्ट एंड ब्रॉडेस्ट. उसके बाद जो ब्राइटनेस है और जो ब्रॉडनेस है फ्रिंज विड्थ वो भी कम हो जाता है. दैट्स द इंटेंसिटी प्रोफाइल. समझ में आया? एंड व्हाट दे आस्क अस हियर इज कैन यू फाइंड द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा. ये एग्जाम में हमको पूछते हैं. ओके, बट बिफोर वी डू दैट यू शुड अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्या होगा कि कंडीशंस आर रिवर्स्ड. ओके, तो व्हेन वी से
delta L is equal to n lambda, that is condition for dark fringe. Okay, and when we say delta L is equal to 2m plus 1 lambda by 2, that is condition for bright or constructive fringe. Bright fringe के लिए ये condition है. So it is reverse of the interference that we have learned. Okay, and that is something that you know. And also you should know that कि जो पार्ट डिफरेंस है उसका वैल्यू डेल्टा एल का वैल्यू इज a sin theta here. So you can write a sin theta is equal to n lambda for bright, and a sin theta is odd multiple of lambda by 2 for this is for dark and this is for bright. उल्टा. Okay, समझ में आया? Any questions here? And the diagram is pretty much the same thing. Okay, अगर थोड़ा बनाएंगे अगर तो what we can imagine ये split में we can imagine there are two sources on the edges S1 S2. We have multiple sources, but I am taking two extreme ends का sources, and they will interfere on the screen. This is the center, and the profile looks like this. As such, intensity profile. Okay, so basically I am looking for this width. ये distance चाहिए, तो यहाँ पे से लेकर यहाँ तक. This is the fringe width. This is first dark, right? यहाँ पे first dark है. Then you have bright, then dark again. Okay, so just draw these lines. Call this point as point P. Point P is where first dark is formed, and ये distance को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसको बोल रहे हैं लोग y. So I can say that जो fringe width है, fringe width is basically 2 times y. What is y? It is distance of first dark from center. समझ में आया क्या? Any questions? Okay, and ये भी मिल जाएगा आराम से. देखो, we know that कि delta L is n lambda for dark. Delta L is a sin theta, or it is y small d is replaced by small a. Y small a upon d. Substitute करो. So you get y small a upon d is equal to n lambda. First dark है तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? Which implies n का वैल्यू 1, तो y a upon d will be equal to 1 lambda या lambda. Okay, तो एक y का वैल्यू क्या मिल गया? Lambda d upon a. सब्स्टिट्यूट है. Therefore फिर width का वैल्यू है 2 lambda d upon a. That's the formula. Okay.